everyone, welcome to Quest Science Academy. So in this video tutorial we will going to study about polymerase chain reaction. So we need to know about the process of polymerase chain reaction. Okay, what do you mean by PCR and how does it run and what are the consequences of polymerase chain reaction? Is a technique used for amplifying what? DNA की एम्प्लीफिकेशन में क्या करता है? ये हेल्प करता है. एंड हु डिस्कवर्ड PCR? कैरी म्यूलिस. ठीक है, कैरी म्यूलिस ने क्या करा था? डिस्कवर करा था PCR, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन. अपार्ट फ्रॉम दिस, इन दिस टेक्निक ड्यूरिंग PCR there is a change in a temperature occur. Okay, so changes in a temperature basically used for the control of the activity of some primers. Okay, so हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं? So change in temperature. So in this technique, mostly there is a change in temperature. Okay, so change in the temperature is required to control the activity of polymerases and ये polymerases किससे बाइंड होते हैं? बाइंड टू प्राइमर्स. तो यहाँ पे दो वर्ड आ रहे हैं, एक है हमारा polymerases, एक है primers. So what are primers? Primers are nothing but the long sequence. It is 5 to 10 oligonucleotide sequence is known as primer. Okay, which initiates, primer is going to what? Initiate the replication of the DNA. Okay, so what do you mean by primer? Primer is nothing but the 5 to 10 oligonucleotide sequence. ठीक है, और यहाँ पे जो पॉलीमरेज काम आ रहा है, हम जो DNA जो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पढ़ रहे हैं, इसमें जो पॉलीमरेज एंजाइम है, कौन सा पॉलीमरेज एंजाइम इज बेसिकली रिक्वायर्ड फॉर दी what cloning of the DNA? It is Taq polymerase. Which one? Taq polymerase enzyme. So Taq polymerase enzyme क्या है कि ये अगर हम मैक्सिमम से मैक्सिमम टेम्परेचर पे इट इज गोइंग टू सर्वाइव. ओके, अगर मैक्सिमम टेम्परेचर भी अगर हम इसको प्रोवाइड कराते हैं तो इट इज गोइंग टू बी सर्वाइव इन दैट टेम्परेचर ऑल्सो. दैट्स वाई दिस इज रिक्वायर्ड इन दी DNA polymerase chain reaction. Okay, so Thermus aquaticus, Taq polymerase ये किससे एक्सट्रैक्ट किया है? Thermus aquaticus. ये जो बैक्टीरिया है इससे क्या करा है? एक्सट्रैक्ट करा है क्या हमारा Taq polymerase enzyme. Okay, so ये कुछ बेसिक थिंग थी बिफोर वी लर्न अबाउट द polymerase chain reaction. Okay, so let's start with the steps of polymerase chain reaction. So basically in polymerase chain reaction there is a 3 steps. First one is what? Denaturation. Then so first one is denaturation, then we have extension, okay, and annealing also. So sequence क्या है इनका? First है हमारा denaturation, then second one is what? Annealing, and the third one is extension. So ये जो 3 स्टेप हैं, these 3 steps is required in the polymerase chain reaction. Okay, so initially what we have? So we have the denaturation process.
डीनेचुरेशन प्रोसेस में क्या होता है, लेट सपोज मैं यहाँ पे बना लेती हूँ एक डीएनए स्ट्रैंड, ये हमारी है डीएनए स्ट्रैंड 3' to 5', then complementary each other 5' to 3', right? So when these are complementary each other and attached with some what hydrogen bonds, right? And initially we have to denature these strands. So हमारे पास ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, इसको हमें डीनेचर करना है. डीनेचर हम कैसे करेंगे? विद द हेल्प ऑफ व्हाट? Denaturation process. And in the denaturation process we are going to what? Increase the temperature. So यहाँ पे हम क्या करेंगे? Increase the temperature. Temperature इतना इंक्रीज कर देंगे कि ये जो दो स्ट्रैंड है हमारी डीएनए की, ये क्या हो जाएंगी? इट इज कन्वर्टेड इनटू सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए. तो यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है, दिस वन इज अराउंड 95 डिग्री सेल्सियस. फर्स्ट हमारा जो डीनेचुरेशन का जो प्रोसेस है, इसमें हम 95 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं, सो दैट डबल स्ट्रैंडेड डीएनए इज कन्वर्टेड इनटू व्हाट? सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए. सो ये क्या हो जाता है? इट इज कन्वर्टेड इनटू सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए 3' to 5' to 3'. मतलब अब पहले ये क्या था? एक स्ट्रैंड था, मतलब पहले ये पूरा एक डबल स्ट्रैंड डीएनए था. अब हमारे पास दो स्ट्रैंड है, दैट इज डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड एंड सिंगल स्ट्रैंडेड. ओके, सो अब दो स्ट्रैंड हो गए हमारे पास. दो स्ट्रैंड होने के बाद हम क्या करेंगे? टेम्परेचर को फिर से डिक्रीज कर देंगे. डिक्रीज क्यों करेंगे? अब इट इज अप्रोक्सीमेटली 55 to 60. अगर हम 55 अप्रोक्सीमेटली ले लेते हैं यहाँ पे, टेम्परेचर विल अगेन डिक्रीज, गोइंग टू डिक्रीज इन अनीलिंग. अनीलिंग में हम टेम्परेचर को डिक्रीज इसलिए करेंगे क्योंकि वी पुट द प्राइमर ऑन ईच स्ट्रैंड. सो हम यहाँ पे क्या लेकर आएंगे? प्राइमर लेकर आएंगे टू अनील दी स्ट्रैंड्स. प्राइमर यहाँ अटैच हो गया आके. प्राइमर इज रिक्वायर्ड फॉर द इनिशिएशन ऑफ द डीएनए रेप्लिकेशन. ठीक है, यहाँ पे हमारा प्राइमर आ गया जो कि 5 से 10 ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड से बना होता है. ठीक है, और यूज टू एम्पलीफाई द डीएनए ऑल्सो. अब यहाँ पे हमने क्या कर दिया? टेम्परेचर को डिक्रीज कर दिया, प्राइमर आके अटैच हो गया. अब अगेन हम क्या करेंगे? एक्सटेंशन में अगेन वी नीड टू इंक्रीज सम व्हाट? टेम्परेचर. तो यहाँ पे अगेन हमें इंक्रीज करना है. इट इज अप्रोक्सीमेटली 70 to 72 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे इसका टेम्परेचर होता है. ठीक है, इन एक्सटेंशन द टेम्परेचर राइजेस अगेन एंड द डीएनए पॉलीमरेज. कौन सा डीएनए पॉलीमरेज? टैग पॉलीमरेज इज कम एंड व्हाट? अटैच विद द प्राइमर. अब यहाँ पे ये अटैच हो जाएगा प्राइमर के साथ. कैसे हो जाएगा देखो, थ्री डैश टू 5', 5' to 3'. ये हमारा था क्या? प्राइमर. ये भी प्राइमर था हमारा. अब हमारे पास जो टैग पॉलीमरेज था एंजाइम, वो क्या होगा? यहाँ पर आके अटैच हो जाएगा. क्या है ये? टैग पॉलीमरेज एंजाइम, थर्मस एक्वाटिकस से जो एक्सट्रैक्ट करा था हमने. ठीक है, सो दिस डीएनए पॉलीमरेज इज, ये अगर मैक्सिमम टू मैक्सिमम टेम्परेचर में भी हम रखते हैं इस डीएनए पॉलीमरेज को, तो दिस विल गोइंग टू सर्वाइव. ओके, सो दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एम्पलीफाइंग ऑफ द डीएनए. अब ये क्या करेगा? ये जो टैग पॉलीमरेज है, दिस विल going to extend the strands, each strand. अभी each, हर एक दोनों strand को क्या करेगा? इंडिविजुअल एक्सटेंड करेगा. ठीक है, तो ये इस तरीके से एक्सटेंड होने लगेंगे 3 to 5. यहाँ पे हमारी नई स्ट्रैंड बनेगी 5 to 3' अगेन. ये फिर से यहाँ पे एक्सटेंड यहाँ से होने लगेंगे. तो ये हमारी यहाँ 3 to 5 थी, या 5 to 3 अगेन. इस तरीके से हमारी स्ट्रैंड्स जो है एक्सटेंड होने के बाद हमें क्या मिलेगा? वी गेट दी 2 स्ट्रैंड.
ये हमारे पास ऑलरेडी 3, 5 ये ऑलरेडी थी हमारे पास, तो यहां से ये इस तरीके से स्ट्रैंड एक्सटेंड हुई, ये यहां से इस तरीके से एक्सटेंड होने लग गई। देन वी गॉट 2 स्ट्रैंड्स। ठीक है, यहां पे हमें क्या मिल गई? 2 स्ट्रैंड मिल गई। दिस इज द स्ट्रैंड, डीएनए स्ट्रैंड 1 एंड स्ट्रैंड 2। ठीक है, तो एक हमारे डीएनए से हमें क्या मिल गया? 2 डीएनए स्ट्रैंड मिल गई, राइट। सो अगेन हम क्या करेंगे? दिस प्रोसेस स्टार्टिंग से फिर से हम इसको साइकिल करेंगे। इट इज अराउंड 40 साइकिल्स इज गोइंग टू सर्कुलेट। 40 साइकिल्स हम इसको रन कराएंगे अगेन एंड अगेन। दीज स्टेप्स आर गोइंग ऑन एंड हम एक डीएनए के मिलियंस ऑफ कॉपीज बना सकते हैं। ठीक है, मतलब मिलियंस ऑफ कॉपीज। अब इसके बाद यहाँ पे हमने जैसे ही ये 2 स्ट्रैंड बनाई है, इन 2 स्ट्रैंड्स को हम क्या करेंगे? वी आर गोइंग टू रन इन अ एगरोज जेल। एगरोज जेल में हम क्या करेंगे? इसको रन कराएंगे। ठीक है, सो एगरोज जेल में मतलब जैसे ही रन कराएंगे, सो वी गेट दी मल्टीपल कॉपीज, वी गेट टू नो दी मल्टीपल कॉपीज ऑफ डीएनए बाय इफ दी लाइक यहाँ पे क्या होते हैं, हम कुछ फ्लोरोसेंट डाइज डाल देते हैं। ठीक है, लाइक ETBr, इथिडियम ब्रोमाइड। तो कुछ हम क्या डालेंगे इसमें? इथिडियम ब्रोमाइड करके फ्लोरोसेंट डाई डालेंगे। जैसे ही फ्लोरोसेंट डाई हमने डाली है, तो हम उसको अगर एगरोज जेल में रन कराते हैं, तो दीज फ्लोरोसेंट डाई विल लाइक गिव दी लाइट, राइट। So by seeing the or by calculating in this spectroscope technique, by calculating these fluorescent dyes, then we have to calculate the number of copies of DNA. So we need to just lastly calculate the copies of DNA, or we got the maximum number of copies, right? So हम इस साइकिल को around 35 to 40 साइकिल्स हम इसको रन कराते हैं, और यहाँ पर हमारा जो पूरा प्रोसेस है, इट इज गोइंग टू रिक्वायर्ड फॉर द एम्पलीफाइंग ऑफ डीएनए। मतलब हम एक डीएनए से बहुत सारी कॉपीज बना सकते हैं, राइट। अब ये सिंपल पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है, राइट। सो वी हैव, आपने एक सुना होगा आरटीपीसीआर। आरटीपीसीआर क्या होता है? आरटीपीसीआर मीन्स रियल टाइम पीसीआर। रियल टाइम पीसीआर मतलब क्या होता है? तो प्रोसेस इज सेम, ठीक है, बट द इफेक्टिवनेस, द कॉस्ट रिड्यूसिटी, और यहाँ पे हमारा जो टाइम है वो बहुत ही लेस लगता है एज कम्पेयर टू दिस प्रोसेस। और बिकॉज क्यों होता है यहाँ पे? बिकॉज ये जो लास्ट प्रोसेस है टू कैलकुलेट और टू रिकॉग्नाइज दीज स्ट्रैंड्स, वी नीड टू जस्ट रन these strands into agarose gel, right? ये हमारा लास्ट प्रोसेस है। तो हमें रियल टाइम पीसीआर में क्या करना होता है कि यहां तक जब हमारी प्रोसेस हो जाती है, उसके बाद हमें एगरोज जेल में रन नहीं कराना पड़ता। वी नीड टू जस्ट वी हैव अ डिटेक्टर टू डिटेक्ट दीज स्ट्रैंड्स, एंड विद द हेल्प ऑफ व्हाट, एक ग्राफ बनेगा। अगर ये ग्राफ जो है इंक्रीज जैसे ही होता है, जितना इंक्रीज होगा उतनी ही नंबर ऑफ कॉपीज हमें डीएनए की मिलेगी, ठीक है। तो इट इज अ डिफरेंट, लाइक इट्स द सेम प्रोसेस, बट टू रिड्यूस द इफेक्टिवनेस ऑफ दिस polymerase chain reaction, we have to just go towards the real time PCR. Okay, so this is all about the PCR, polymerase chain reaction. Okay, so thank you very much. If you like the video, just do subscribe and do like our channel, so that you get all the videos for the NEET aspirants and CSIR NET aspirants. Okay, thank you very much. Have a nice day.